Good afternoon, everyone. Where are other people? Yes, Ranjit and Karan. बाकी लोग कहाँ हैं? They will join or not? Or shall we start here? Should if they are joining, then we can wait. If they are not, then we should start. So shall we start? Okay, no problem. If anyone else is not joining. So today we will discuss our last practical, that is practical number 9, which is based on the concept of clustering. All right. So when we talk about the clustering, it is a concept of unsupervised learning. If you remember the terms I had discussed with you, two of the terms, supervised and unsupervised learning. So the clustering is a data analysis task, data mining task, which comes under the unsupervised learning, right? And when we talk about the unsupervised learning, we know that we in that task we will not train the machines. हम machines को train नहीं करते हैं, testing नहीं करते, means in short it is not a two-step process. In unsupervised learning, we extract the hidden patterns, we find the hidden patterns and trends into the data sets from the data sets. This is what unsupervised learning is. So same as the unsupervised learning, clustering is the same concept. अब clustering भी वही है because it is a data analysis task which comes under this category. So basically clustering का concept क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आप क्लस्टरिंग को बेटर वे में समझ पाओगे. पहले डेफिनेशन से बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स में, फिर रियल लाइफ में आपको एक एग्जांपल दूंगी. So when we talk about the clustering, it is a technique or it is a method in which we make the clusters, we make the group of those data points or data objects which is having the same behavior, or we can say that which is having the similar interest or behavior. Those data points who is having similar behavior will be clustered into a one cluster, that is called clustering, right? Okay, let me show you the PPT here. Okay, so you can see that it is written over here as well. It is an unsupervised machine learning based algorithm that comprises a group of data points into clusters so that the objects belong to the same group. तो cluster based basically क्या है, हम जो हमारा जो given data set होता है उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं उस डेटा को इनटू नंबर ऑफ क्लस्टर्स, इनटू दैट नंबर ऑफ ग्रुप्स. सो अब वो जो क्लस्टरिंग में हम क्लस्टर्स में डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे होता है, इट मींस द डेटा पॉइंट्स व्हिच बिलोंग्स टू द सेम क्लस्टर्स हैविंग द सिमिलर बिहेवियर is known as clustering here. So you can see that by looking in this the picture you can analyze what clustering is. तो आपको एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपको डिपार्टमेंट से 3 इलेक्टिव, let's assume we are giving you 3 choices of electives that you can opt any of the subject as per of your interest. So basically if you are having 60 student in your class and we had given you the 3 choices of subjects as an elective to opt as an elective subject. So may for example maybe 20 student had opted subject A,
20 student opted subject B, or maybe 20 students opted subject C. राइट, सो आपने क्या किया, तीनों सब्जेक्ट्स में से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट एरिया हुआ आपने वो सब्जेक्ट चूज कर लिया। ऐसे ही मान लेते हैं 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट ए चूज किया, 25 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने सब्जेक्ट बी चूज किया, और 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने सब्जेक्ट सी चूज किया। तो हमने क्या किया, तीन ग्रुप्स में आपकी क्लास को डिवाइड कर दिया कि ग्रुप ए इज हैविंग द स्टूडेंट्स which is learning subject A. Group B is having the student which is learning subject B, and similarly with subject C, राइट। तो उसमें क्या हुआ, इस ये क्या जो टेक्निक है, जो मेथड हम बोल रहे हैं, इसे हम क्लस्टरिंग बोल रहे हैं। द डेटा पॉइंट्स, अब डेटा पॉइंट्स हो तो हम यहाँ पे यूज करें, डेटा पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटिंग यू द क्लस्टर, द कस्टमर्स, और द थिंग जिसपे भी आप क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहे हो उस पॉइंट को हम डेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा पॉइंट्स जिनका बिहेवियर सेम है या जिनका जो इंटरेस्ट एरिया सिमिलर है, उसे हम एक ही ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग। फाइन। तो अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्टली हम ब्रॉडली अगर क्लस्टरिंग को क्लासिफाई करते हैं तो टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट क्लस्टरिंग और दूसरा होता है हार्ड क्लस्टरिंग। We are having broadly two categories of clustering, soft clustering एंड हार्ड क्लस्टरिंग। मतलब मैंने सॉफ्ट क्लस्टरिंग में क्या किया, ऐसे डेटा पॉइंट्स जो अगर एक ग्रुप में लाए करते तो हो सकता है उसका बिहेवियर किसी दूसरे ग्रुप में भी मैच करता हो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट क्लस्टरिंग। जैसे कि इफ यू आर यू हैड opted elective 1 and you are learning subject A, then also you are a student of class TC3, राइट। तो आप दूसरे ग्रुप में भी बिलोंग कर रहे हो, तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट क्लस्टरिंग। बट हार्ड क्लस्टरिंग का क्या मतलब है कि जो डेटा पॉइंट्स जिस जिस ग्रुप में है उसके अलावा उसका जो बिहेवियर है वो कहीं भी मैच नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड क्लस्टरिंग। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग बेसिकली। ये हम जब हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो दिस इज द concept, basic concept of clustering. So we had discussed earlier many applications of clustering, जैसे कि आपका जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको रिकमेंडेशंस देता है ना कि यू मे बाय दिस, सो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। अब जो ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, इन लोगों ने उन कस्टमर्स को जिनका टेस्ट सेम है, जो सेम तरह के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, आइटम्स बाय करते हैं, उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया है। तो वो अगली बार जो भी नया पर्सन आता है, अगर किसी मान लो उनके पास 4 ग्रुप्स हैं कस्टमर्स के, मैंने कुछ ऐसा ऑप्ट किया जो ग्रुप बी में मैच होता है, द ग्रुप बी कस्टमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट दैट आई एम हैविंग, तो मुझे कौन सी रिकमेंडेशन दिखाएगा, ग्रुप बी के कस्टमर्स की। सो दिस इज द वे हाउ दे रिकमेंड यू द आइटम्स, राइट। इट इज द टोटल application of your clustering data analysis task की application है आपकी। So this is the कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। अभी क्लस्टरिंग की भी टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि वो डेटा ऑब्जेक्ट्स जिनका सिमिलर बिहेवियर है उसके बेसिस पर हमने डेटा सेट को मल्टीपल क्लस्टर्स में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग करने के लिए भी जब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं एक से ज्यादा क्लस्टर्स बना रही हूँ अपने डेटा पॉइंट्स के, तो क्लस्टर्स भी किसी ना किसी बेसिस पे बनेंगे, मतलब ग्रुप्स पे। जैसे कि मैंने स्प्लिटिंग कैसे की, बेस्ड ऑन द इलेक्टिव यू हैव ऑप्टेड, राइट। तो वैसे ही क्लस्टरिंग टेक्निक जब हम बात करते हैं, तो क्लस्टरिंग टेक्निक में क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी परफॉर्म क्लस्टरिंग। मतलब किसके बेसिस पर हम वो ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं, वो क्लस्टर्स डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको, वी आर हैविंग मल्टीपल मेथड्स ऑफ क्लस्टरिंग। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग पार्टीशनिंग मेथड। पार्टीशनिंग मेथड्स में हम क्या यूज करते हैं, हम डिस्टेंस यूज करते हैं बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। मीन्स ऐसे डेटा पॉइंट्स जिनके बीच का डिस्टेंस कम होगा उन्हें हम एक ही क्लस्टर में प्लेस करेंगे, दैट इज द पार्टीशनिंग मेथड। सेकेंड, वी आर हैविंग डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। डेंसिटी बेस्ड मीन्स जहाँ पे ज्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे, जहाँ ज्यादा डेंस डेटा पॉइंट्स होंगे, वहां हम एक क्लस्टर्स को बनाएंगे, दैट इज डेंसिटी बेस्ड
models. Then we have hierarchy methods. Hierarchy methods like we are having top down और bottom up hierarchy. हम एक क्लस्टर को मतलब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं टॉप डाउन से अगर शुरू की बात करें तो हम टॉप डाउन हायरार्की में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं क्लस्टर्स को स्प्लिट करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट हायरार्की से सेकंड की तरफ तो मैंने 2 क्लस्टर्स बनाए, फिर 2 से 4 बनाए, 4 से 8 बनाए। तो हम क्या करते हैं इफ यू रिमेंबर अबाउट द जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो इट इज बेस्ड ऑन दैट। जो आपका फर्स्ट वाला जो आपका टॉप हायरार्की में जो क्लस्टर होगा वो जनरलाइज्ड होगा। उसके बाद जैसे-जैसे आप लेवल 1, 2 पे आते जाओगे तो आपके जो क्लस्टर्स होंगे उन वो स्पेशलाइज्ड होंगे। तो ऑन द बेस्ड ऑन दैट वी आर हैविंग डिफरेंट क्लस्टरिंग टेक्निक्स जिसके लिए मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया भी है। हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं क्लस्टरिंग के जो हम यूज़ करते हैं, राइट? Basically in our syllabus we are having one topic to discuss in lab that is k-means algorithm that today we will going to do in Veka. अब k-means algorithm किस कैटेगरी में आता है that is in the first category partitioning method. Here we are having a k-means algorithm. राइट अब k मीन्स एल्गोरिथम क्या है और वो कैसे काम करता है। अब पहले तो मैंने आपको बताया पार्टीशनिंग मेथड के बेस्ड पे है तो पहले k मीन्स एल्गोरिथम को हम डिस्कस करते हैं। आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ फिर हम इसे वेका में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे राइट। तो k मीन्स एल्गोरिथम क्या है बेसिकली इफ यू विल सी हियर द फ्लो चार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम फर्स्टली व्हेन यू स्टार्ट द एल्गोरिथम यू हैव टू गिव द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो ये इसका प्री रिक्विजिट है कि जैसे ही आप एल्गोरिथम स्टार्ट करते हो तो आपको पहले ये बताना है कि आपको गिवन डेटा सेट को कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स में स्प्लिट करना है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय k। सो k विल रिप्रेजेंट यू द नंबर ऑफ क्लस्टर्स फॉर द गिवन डेटा सेट। ठीक है जैसे कि मैंने अगर 3 इलेक्टिव दिए तो मैंने पहले बताया आपको मतलब आई हैड गिवन दैट कि मैं आपकी क्लास के 3 ग्रुप्स बनाऊंगी तो द वैल्यू फॉर द के इज 3 राइट। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं के मींस एल्गोरिथम तो के मींस एल्गोरिथम का बेसिक आइडिया क्या है। बेसिक आइडिया यहाँ पे क्या है हम क्या करते हैं डेटा पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो जो डेटा पॉइंट्स का आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पार्टीशनिंग इसमें हम डिस्टेंस बेस्ड पार्टीशनिंग करते हैं। डिस्टेंस बेस क्या है जिन डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा मैं क्या करूंगी उसे एक ही क्लस्टर में प्लेस करूंगी। दिस इज ऑल अबाउट के मींस क्लस्टरिंग। और सबसे पहले हम सेंट्रोइड वैल्यूज फाइंड करते हैं ठीक है हर एक क्लस्टर की। फिर हर एक डेटा पॉइंट को सेंट्रोइड से कंपेयर करते हैं जिस भी डेटा पॉइंट की वैल्यू सेंट्रोइड से कम आएगी उसे उस क्लस्टर में हम प्लेस करेंगे नहीं तो हम उसे दूसरे क्लस्टर में प्लेस करेंगे राइट। तो वैसे ही हम ऐसे ग्रुपिंग में ग्रुप्स बना देते हैं क्लस्टर्स बना देते हैं बेस्ड ऑन द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है और ये सब हम डिस्टेंस किससे फाइंड करते हैं वन ऑफ द मेजर वी आर यूजिंग दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस। फाइन। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। You can see here, this is how the k-means clustering algorithm works. You are having data points A1 and A2. It is plotted over here in the x और y axis. x और y axis पे मैंने प्लॉट किया है आपके इस डेटा पॉइंट्स को। तो आपके डेटा पॉइंट्स गिवन है ए और A1 और A2 ठीक है। इन डेटा पॉइंट्स को मैंने क्या किया है यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। तो हमारा एल्गोरिदम काम कैसे करता है के मीन्स वो सबसे पहले आपको गिवन होगा कि आपको इस डेटा सेट के कितने क्लस्टर्स बनाने मतलब आपको इस डेटा सेट को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है राइट। So the value for the k is given that is 3. I want to make 3 clusters. तो 3 clusters given है तो 3 clusters given आपको k की वैल्यू गिवन है कि आपको गिवन डेटा सेट को 3 clusters में डिवाइड करना है। तो आप क्या करते हो सबसे पहला स्टेप होता है टू चूज एनी रैंडम पॉइंट एज अ सेंट्रोइड फॉर ईच क्लस्टर। अब आपको 3 क्लस्टर्स बनाने हैं तो आपने 3 रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिए क्लस्टर्स बनाने के लिए ठीक है। तो ये रैंडमली आपने चूज किया कि जो फर्स्ट क्लस्टर है ये उसका सेंट्रोइड है ये सेकंड क्लस्टर का सेंट्रोइड है और ये थर्ड क्लस्टर का सेंट्रोइड है। आप गिवन डेटा सेट में से किन्हीं भी 3 डेटा पॉइंट्स को रैंडमली चूज कर सकते हो एज अ सेंट्रोइड ऑफ एन ईच क्लस्टर। तो सबसे पहले हम सेंट्रोइड वैल्यूज को चूज करते हैं रैंडमली चूज कर लिया हमने। उसके बाद आपका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है फिर हम क्या करते हैं जैसे कि इस सेंट्रोइड की बात करते हैं फिर किसी एक नए डेटा पॉइंट से हम हर एक सेंट्रोइड से उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं जैसे कि इस पॉइंट से पहले मैं C1 के सेंट्रोइड का डिस्टेंस फाइंड करूंगी
फिर C2 के सेंट्रोइड से डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, फिर C3 के सेंट्रोइड से डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी। जिसका भी डिस्टेंस मिनिमम आएगा, मेरा नया डेटा पॉइंट क्या है वो उसी क्लस्टर में लाई करेगा। इज इट क्लियर? जैसे कि मैंने 3 डिस्टेंस फाइंड किए, फर्स्ट फर्स्ट डेटा पॉइंट ये है, उसका डिस्टेंस तीनों में से किसमें कम है? इट इज इन D2। तो सेकंड क्लस्टर में कम है, तो वो कौन से क्लस्टर में लाई करेगा? सेकंड में। अब इन तीनों वैल्यूज में देखो कौन सा डिस्टेंस कम है, दैट इज 3.0, तो वो कौन से क्लस्टर में लाई करेगा? फर्स्ट क्लस्टर में। ऐसे ही मैं सारे डेटा पॉइंट्स को सेंटर वैल्यू से कंपेयर करूंगी, जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी उसको मैं क्या कर दूंगी? उस क्लस्टर में प्लेस कर दूंगी। द पॉइंट हियर टू रिमेम्बर इज कि सबसे पहले जैसे ही मेरा कोई भी पॉइंट है वो किसी भी क्लस्टर में मूव करता है, तो देखो जो सेंट्रोइड्स मैंने पहले रैंडमली चूज किए थे, दैट आर नॉट द एग्जैक्ट सेंट्रोइड्स ऑफ दैट क्लस्टर, तो वो तो रैंडम थे ना। अगर मानो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है कि क्लस्टर में लाई करता है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट नहीं होगा, इसका सेंटर पॉइंट इन बिटवीन समवेयर होगा, इन दीज टू पॉइंट्स, राइट? सो आई हैव टू फाइंड आउट द न्यू सेंट्रोइड फॉर द गिवन डेटा पॉइंट। जैसे ही नया कोई डेटा पॉइंट ऐड होता है किसी क्लस्टर में, तो मैं उसके सेंट्रोइड की वैल्यू को अपडेट करती जाती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द old centroids, old centers that we had randomly chosen, and these are the new centroids. This is the way how your k-means clustering works. It will find the minimum distance between the new data points to the center point of the cluster, और जिसका भी डिस्टेंस मिनिमम होगा, जिस भी सेंटर पॉइंट से नए पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम होगा, नए पॉइंट को कहाँ प्लेस करूंगी? उस क्लस्टर में। दिस इज हाउ के मीन्स क्लस्टरिंग वर्क। तो जैसे ही जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसको मैं क्या करूंगी? सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को तीन ही क्लस्टर्स में डिवाइड कर दूंगी। इज इट क्लियर? The concept of K-means clustering. Okay, so now we will demonstrate this algorithm in Veka. Veka में demonstrate करते हैं इस algorithm को। Okay, so you can see here, मैंने वेका ओपन किया। जैसे मैंने वेका ओपन किया तो मैं कोई फाइल ओपन करूंगी, so that I can perform a clustering data analysis task on any of the given data set. So I will go there. Let me open a data set. चलो मान लेते हैं कि मैंने लेबर का डेटा सेट ओपन कर लिया, ठीक है। So I open that data set. I am having 17 attributes and 57 instances. Fine. So अब मुझे क्या करना है? इन जितने भी इंस्टेंसेस या एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जितना भी मेरे पास डेटा दिया है, मुझे उनको तीन क्लस्टर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? आई हैव टू गो क्लस्टर्स। क्लस्टरिंग में मुझे कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है? के मीन्स। सो हियर इट इज सिंपल के मीन्स। जैसे आपने सिंपल के मीन्स चूज किया, तो रिमेम्बर मैंने क्या बताया? फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको के की वैल्यू चूज करना। तो के की वैल्यू कहाँ से आप चूज करोगे? फ्रॉम दिस विंडो। यहाँ पे आपको गिवन होगा कि आपको कितने क्लस्टर्स बनाने हैं गिवन डेटा सेट के। यहाँ पे दो वैल्यू बाय डिफॉल्ट गिवन है। इफ यू वांट टू मेक फोर, यू कैन गिव फोर। फॉर एग्जांपल मैं तीन क्लस्टर्स बना रही हूँ, तो आई हैड रिटन ओवर हियर द वैल्यू फॉर द क्लस्टर्स इज 3। क्लिक ओके एंड स्टार्ट द एल्गोरिथम। तो यू कैन सी हियर कि गिवन डेटा सेट के जितने भी इंस्टांसेस थे उसको तीन क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है, क्लस्टर 0, क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2।
Cluster 0 will include 36 instances, that is 63% of data. Cluster 1 will include 5 instances and cluster 2 will include 16 instances. So basically आपका क्या कर रहा है k means clustering, हर एक डेटा पॉइंट से आपके सेंट्रोइड वैल्यू तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा है। जिस भी क्लस्टर से उसका जो सेंट्रोइड वैल्यू से जो उसका डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा, उस नई वैल्यू को कहाँ प्लेस कर देगा, उस क्लस्टर में। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट के मींस क्लस्टरिंग। तो आप देखो, ये जो के मींस क्लस्टरिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हम न्यूमेरिक डेटा सेट पे परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, राइट। आई विल शो यू वन मोर थिंग हियर। You can also analyze, you can also visualize the clusters। जो भी क्लस्टर्स हैं आप उन्हें विजुलाइज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट किया है क्लस्टर्स को। तो क्लस्टर 0 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर डेटा पॉइंट्स, क्लस्टर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड डेटा पॉइंट्स एंड क्लस्टर 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन डेटा पॉइंट्स। तो आप देखो कि आपको ज्यादातर कौन से डेटा पॉइंट्स विजिबल है यहाँ पे ब्लू कलर के। तो ब्लू कलर का डेटा सबसे ज्यादा है हमारे पास, दैट इज ऑफ क्लस्टर 0 विच इज हैविंग 63% ऑफ डेटा, राइट। देन क्लस्टर 1 इज हैविंग द मिनिमम डेटा, 5 इंस्टेंसेस हैं। तो अब देखो आपको रेड कलर के जो डेटा पॉइंट्स है वो बहुत रेयर दिख रहे हैं। Basically these are only five: 1, 2, 3, 4 and 5, right? So this is the way you can visualize your data points as well in the given window. Fine. So I'll show you one more thing. आप जब भी कोई मैनुअली भी कोई क्लस्टरिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या फिर फाइंड आउट करते हो कि मीन्स क्लस्टर्स से क्लस्टर्स, तो कैसे फाइंड आउट करते हो? देखो आपको ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन पेपर में कि डिवाइड द गिवन सैंपल डेटा इनटू टू क्लस्टर्स, मींस द वैल्यू ऑफ के इज ऑलरेडी गिवन हियर बाय यूजिंग के मींस एल्गोरिथम and by using Euclidean distance. Euclidean distance is one of the measure we are using to find the distance between the सेंट्रोइड एंड द गिवन डेटा पॉइंट। तो ये आपको डेटा सेट गिवन है जिसमें आपको दो चीजें गिवन है, हाइट और वेट, राइट। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है जैसे हम यूज करते हैं, इसके पैरामीटर्स क्या क्या है कि ऑब्जर्व वैल्यू और सेंट्रोइड वैल्यू का डिफरेंस, राइट। सो यू कैन सी हियर वी आर हैविंग टू डेटा पॉइंट्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेरे पास दो, मुझे क्या करना होता है, दो क्लस्टर्स बनाने हैं मुझको। तो मैंने क्या किया, रैंडमली किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मैंने सेंट्रोइड अज्यूम कर लिया। मैंने दो क्लस्टर्स इनिशियलाइज किए और जो गिवन डेटा सेट है उसके पहले दो पॉइंट्स को मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट क्लस्टर का सेंट्रोइड है या सेकंड क्लस्टर का सेंट्रोइड है। यू कैन सी हियर आई हैड अज्यूम दैट। तो मैंने रैंडमली चूज किया है C1 का सेंट्रोइड और C2 क्लस्टर का सेंट्रोइड। तो ये दोनों के सेंट्रोइड वैल्यूज हो गई। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो मेरा नया डेटा पॉइंट है दैट इज द थर्ड वन, 168 एंड 60, राइट। तो थर्ड वन के लिए मुझे क्या करना है, दिस इज द न्यू डेटा पॉइंट। उसके लिए मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करती हूँ C1 के कंपैरिजन, C1 के लिए भी और C2 के लिए भी। तो C1 के लिए जब वैल्यू फाइंड करूंगी तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज हो रहा है। This is the observed value, that is 168, and this is the centroid value, that is 185 as per the C1 centroid. And again this is the observed value, this is 60 and this is 72, that is the centroid value as of C1. तो इसका जो कैलकुलेशन से आंसर आएगा that will be 20 point something। अब जब मैं C2 से के कंपैरिजन में इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करूंगी by using the same formula, I will get the value 4.48 which is minimum as compared to cluster 1। तो डेफिनेटली आपका जो नया डेटा पॉइंट है वो कौन से क्लस्टर में जाएगा, C2 क्लस्टर में, राइट। तो आपके जब आपका जो क्लस्टर 2 है, यहाँ देखो
आपके क्लस्टर वन में कौन सा डेटा पॉइंट था, 185 और 72। लेकिन जब आपने दूसरे डेटा, जब नया एक कोई पॉइंट आया, मान लो कोई नया पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो मैंने इसका डिस्टेंस इससे भी फाइंड आउट किया, इससे भी फाइंड आउट किया, तो ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ इसके बाहर नहीं, इसके अंदर ही लाई करता है, तो वो C2 में आएगा। तो अगर मान लो ये C2 में दूसरा पॉइंट आता है, तो अब उसका मतलब उसका सेंटर यहाँ नहीं, कहीं इन दोनों के बीच में है, दैट वुड बी somewhere in between these 2 points. So I will find the new centroid value by doing the average of these two values, that is 168 plus 170, 169, and 60 plus 56 by 2, that is 58, right? So these are the new centroid value for the cluster 2. So in this way I will find out for each and every पॉइंट गिवन इन द डेटा सेट, हर एक डेटा सेट में हर एक पॉइंट के लिए हम ये काम करते हैं, और फिर क्लस्टर वन में और क्लस्टर टू में कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं वो फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। और वेका में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली के मींस एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से आपके क्लस्टर्स बना रहा है। दैट आई हैड गिवन यू द मेन कॉन्सेप्ट कि कैसे आप उस पे वर्क कर रहे हो। सो इज इट क्लियर विद एवरीवन? K means clustering, how you will demonstrate the clustering in the Veka? Yes or no? K means clustering is clear with everyone? Okay. Now what you need to do, you will just implement this algorithm by your own in your systems and make sure that your files are completed. लैब मैनुअल कंप्लीट है आप लोगों की? अपलोड कर दिया आप लोगों ने? Have you uploaded your lab manuals? Okay. थोड़ा बाकी है. Okay. Okay. Make sure that you people will complete your files by end of tomorrow at least. कल शाम तक means by end of tomorrow you will complete your files and uploading the drives. Yes. Okay. Okay. Upload your files in Google Drive by end of tomorrow so that I will check your files by end of tomorrow. ठीक है, तो आपके पास कल तक का टाइम है, आप अपनी फाइल्स कंप्लीट करके अपलोड कर दो, मैं कल चेक कर दूंगी, और कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी देन आई लेट यू नो. And now I'm giving you some time to do this practical, implement this practical by your own, and once you will done let me know, then we will end this session. Ma'am, can we do it later? Right now, do you having some problem? Okay, you are having keyboard issues. Okay, 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 no problem. If you people, everybody is connected via phone, or others are doing. Okay. So, okay, okay, okay. No problem. If you are not connected through laptops right now, or if you do not having laptops right now, then make sure that you will do it later, and you will do it by your time. Just try to implement this algorithm by your own and complete your files as well. Fine. So we are closing this session here with that, and we are completed with 9 practicals, and 10th one is your course.
that is the replacement of your project, mini project, that you need to complete that online course, and for that completion you need to submit a certificate, completion certificate in the Google Drive. If completion certificate is not there, then make sure that you will take a screenshot of your completion progress and upload that screenshot over there in the drive. Fine. Okay, so the instructions and the things are clear. Now do you have anything to ask? All right, so we are closing the session over here.